ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାସକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପୃଥିବୀର ଗତି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ କିପରି ଦିନ ରାତି ଆଉ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୃଥିବୀର ମଣ୍ଡଳ ସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେହି ମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ 4 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଶ୍ମ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ, 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବା। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ସାରା ଶିଳା ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶ। ମହାଦେଶ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଏହିପରି ଯେଉଁ ମହାଦେଶ ଅଛି ଏହି ମହାଦେଶକୁ ନେଇକି ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ। ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭିତରେ ଦେଶ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶ ଭିତରେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି ଆଉ ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ହିଁ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପୃଥିବୀର ଯଦି ସବୁଠୁ ଆସିବା ଉଚ୍ଚତମ ଜାଗା ତ ଆମେ କହିବା ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ, ଯିଏକି ଆମର ଭାରତର ସୀମାରେ ଥିବା ଦେଶ ନେପାଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 8848 ମିଟର। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚ ରହିଛି ତାର ଅବିକଳ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଖାତ ରହିଛି ବା କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଗଭୀରତମ ଖାତ କୁହାଯାଏ ମେରିଆନ୍ ଖାତ, ଯାହାର ବି ଲମ୍ବା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 11,022 କିଲୋମିଟର। ତ ଏତେ ଫୁଟର ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି ରହିଛି ସେପରି ଖାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ନେଇକି ମୃତ୍ତିକାର ସେଦିନ ଦେଖିଥିବା ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ ଭୂମି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଏହିଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଆମର ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏହି ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିଳାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଶିଳାକୁ ଆସିବା ବାରିମଣ୍ଡଳ। ବାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଭାଗ ଜଳ ଅଛି ତାକୁ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ପୃଥିବୀକୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖ ତମ ପାଖରେ। ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ନେଇଯିବା, ପୃଥିବୀର 71 ଭାଗ ଗୋଟିଏ ନୀଳ କଲର ଦିଆଯାଇଛି, 71 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜଳର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଜଳକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ। ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ଜଳୀୟ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ତମେ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି 100 ଭାଗ ନେବା, ସମୁଦାୟ 100 ଭାଗ ନେବା, ତା ଭିତରୁ 71 ଭାଗ କେବଳ ହିଁ ଜଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେଉଁଠି ଜଳ ରହିବା ଆସିବ ମହାସାଗର, ସମୁଦ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଛି ତ এইଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଛି ସବୁ 71 ଭାଗ। ସେପରି ଯଦି ଆମେ ବସବାସ କରୁଛେ ପୃଥିବୀରେ ପାଖାପାଖି 700 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ 7 ଗୋଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି, ସେଇ ମହାଦେଶ ଲୋକ କେବଳ 29 ଭାଗ ଜମିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଥିରୁ ଦେଖିବା। ତ ଜଳ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ଜଳ ଭିତରୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଜଳ ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ଅଛି ପରିମାଣ ଅଧିକ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଅଭାବ ଦେଖିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ଭାଗ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁଯାକ ଜଳ ବା ସମସ୍ତ ଜଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାରଯୁକ୍ତ ନୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଯେତିକି ଯଦି ଜଳକୁ ପ୍ରାୟ 100 ଭାଗ ନେଇଯିବା, ପୃଥିବୀର ଯେତିକି ଜଳ ଅଛି ତାକୁ 100 ଭାଗ ନେଇଯିବା, ସେଇ ଭାଗରୁ 97.2 ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ 97.2 ଭାଗ ଜଳ କେବଳ ଲୁଣି ପାଣି। ଲୁଣି ପାଣି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ର ସାଗର ଭିତରେ ହିଁ କେବଳ 97 ଭାଗ ଜଳ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଭାଗ ବଞ୍ଚିଲା 2.8, ତ ଏଇ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ତୁମର ଝରଣା, ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏଇ ଭାଗରେ ଦେଖିବା ବା ମାଟି ତଳେ ଭୂଗର୍ଭରେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ହିମବାହ, ହିମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବରଫ, ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିବ ତୁମର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ এইଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି 2.1 ଭାଗ ଦେଖିବା, ମାତ୍ର 1 ଭାଗ ଜଳ ଆମ କେବଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। এই 2.8 ରୁ 1.8 ପାଖାପାଖି 8 ଭାଗ ଜଳ ଏକ ବରଫ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ଏମିତି ଭୂଗର୍ଭ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛୁ। ମାତ୍ର କେବଳ 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗରୁ ବି କମ୍ କହିପାରିବା ଜଳ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୁକ୍ତ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଏତେ ବଡ଼ ଜନସମୁଦ୍ର ଅଛି ବା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳ ତ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର 1 ଭାଗ ଜଳ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଦିଏ। ଭାବିଦିଅ ଯଦି ଆମକୁ 100 ଭାଗ ଜଳ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ତ ଆମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜଳର ଅଭାବ ଦେଖାନଥିଲା। ତ ଆମେ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ ବାରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ। ତ ସେହିପରି ବାରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିବା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏମିତି ମହାଦେଶ ଆମେ 7ଟି ଦେଖିଲେ, ଏହି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ବାରିମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ 5 ଗୋଟି ଆମେ ମହାସାଗର ଅଛି। ମାତ୍ର 5 ଗୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମର କହିବା କ'ଣ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଯେଉଁଟାକି ସୁମେରୁ ମହାସାଗର, କୁମେରୁ ମହାସାଗର। ସାଧାରଣତଃ କୁମେରୁ ମହାସାଗର ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। तो देखा प्रशांत महासागर पृथ्वी सबुठ
बृहत्तम महासागर बा बड़ महासागर कहुए जोटा कि आम एशिया पाखापाखि अंचल रही प्रशांत महासागर जो कि सही गर्भर ही मेरियान खात देखा जाए। तापर आसवा अंटार्कटिका महासागर पृथ्वीर द्वितीयतम बृहत्तम महासागर हूँ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका गोटे देखा इंग्रेजी अक्षर एस पड़ो तो से तार चारि भाग दंतुरित थाए खाल ढेप थाए इंग्रेजी अक्षर एस पर देखा जाए तो सी हूँ अंटार्कटिक महासागर। से भारत महासागर भारतर जदि क्वेश्चन आसे तुमको क्यों महासागर नाम गोटे देशर नाम अनुसार केवल भारतर निकट भारतर तल देश तल भाग में गोटे महासागर अच्छी तार नाम हूँ भारत महासागर जोटा कि भारतर सीमा को लगी रही जोटा कि आम भारत आसो केरल जोटा कि पश्चिम पटे सरी दक्षिण पटे जे भी अंश अच्छी से अंचल आमर भारत महासागर अवस्थित। से भाई सुमेरु अर्थात दुईटी मेरु अच्छी आम पढ़ी आम मैप द्वारा सुमेरु मेरु सुमेरु भाग जोड़ा रही है सुमेरु महासागर और कुमेरु पट कुमेरु महासागर साधारणतः जल द्वारा संपूर्ण होता तीनोटी संयोग कराई देखिए आप प्रशांत भारत और आटलांटिक मिसी गोटे सागर तैयारी आम कुमेरु को निजाए मात्र हिसाब से कहुए पांचटी आम मात्र जदि केतोटी जाना आम देखिपुर तो अर्थात से चारोटी महासागर आसवा तो यहीपर चारोटी महासागर रही आम पूरा बुझीदे अर्थात आम अश्वमंडल बुझे बायुमंडल बर्तमान जावा वायुमंडल गोटे तुमको सुंदर चित्र भी अच्छी देखिए पृथ्वी पृष्ठ वायुमंडल अच्छी पृथ्वी पृष्ठ लिखाई स्पीयर गुड़िक लिखाई पृथ्वी में साधारणतः आम जो बचाई जल तो निहाती दरकार से अन्य एक अंश हूँ वायु वायु बिना आम बचा असंभव जदि आम कि समय आम नाक को जब बंद करवा तो देखा आम बहुत आमको हताश लगे आम जोटा कि गोटे अलग चेतन को आम चली जाती तो से आमको वायु निहाती दरकार तो वायु आमको पृथ्वी पृष्ठ में पाखापाखि 1600 किलोमीटर पर्यटन ही देखा जाए अर्थात पृथ्वी पृष्ठ अर्थात आमको कही पृथ्वी पृष्ठ अर्थ हूँ समुद्र पटन ठारू अर्थात 1600 किलोमीटर पर्यटन यही देखा जाए। तो आम देखा प्रथम कौन कौन रोचे पृथ्वी पृष्ठ कौन रोचे ये हूँ पृथ्वी पृष्ठ जोटा कि आम बसवास करुचे पृथ्वी पृष्ठ को लगी गोटे स्पीयर रही चारोटी स्पीयर ना प्रथम कहीदे कौन स्पीयर रही प्रथम हूँ ट्रोपोस्फियर स्ट्राटोस्फियर मेसोस्फियर थर्मोस्फियर एक्सोस्फियर तुमको आज षष्ठ श्रेणी में तुम कि अल्प जान सप्तम पाठरे तुमको आ विषय अधिक जानवर अच्छी तथा तुमको कि ज्ञान दे दूसरी से देखा पृथ्वी पृष्ठ बर्तमान बसवास करुचे पृथ्वी लगी ट्रोपोस्फियर अच्छी यही स्पीयर ही आम जो देखुचे जबखारजान अंगारकाम्ल अम्लजान इत्यादि गैस भरपूर रही जोटा कि गैस और जोटा कि धूलिकणा इत्यादि रही है और यही स्पीयर ही साधारणतः वर्षा होता है जो आम देखुचे वर्षा होची वर्षा केवल यही स्पीयर अच्छी बोली ट्रोपोस्फियर अच्छी जी कि आम पृथ्वी पृष्ठ गोटे आर ऊपर गोटे घोड़णी आकार रखा जाए कहुए ट्रोपोस्फियर रही तो ट्रोपोस्फियर उपरकू जोटा कि स्ट्राटोस्फियर अच्छी स्ट्राटोस्फियर हूँ साधारणतः ट्रोपोस्फियर उपरी भाग रही है जदि आम पृथ्वी पृष्ठ ना ये 16 ରୁ 16 किलोमीटर हूँ ट्रोपोस्फियर 16 ରୁ 50 किलोमीटर हूँ स्ट्राटोस्फियर यही स्पीयर में केवल आर निम्न भाग में वायुगुड़िक अत्याधिक अधिक उचु उचु गले अति हल्का होता है से भाव स्ट्राटोस्फियर व्यवहार कराए और आर निम्न देश में विमान चलाचल होता है ट्रोपोस्फियर ऊपर उठिले विमान जो स्ट्राटोस्फियर उपरी भाग में विमान चलाचल होता है यही स्पीयर को व्यवहार करते हैं से आसो 50 ରୁ 80 किलोमीटर हूँ मेसोस्फियर ऊर्ध्व को गले वायु आस्ते आस्ते हल्का हो जाए तो यही स्पीयर गुड़िक साधारणतः आमर व्यवहार दृष्टि ट्रोपो मेसोपोज पाखे रही एगुड़िक विभिन्न प्रकार कारण आमको व्यवहृत होता है। तापर आसवा 80 किलोमीटर ରୁ 400 किलोमीटर भितर थर्मोस्फियर ये हूँ सबुठ बड़ स्पीयर कहुए थर्मोस्फियर ऊपर तार निम्न भाग में आयनोस्फियर रही है जहाँद्वारा आम बेतार तरंग टीवी आम जो टेलीफोन व्यवस्था होमें फोन कर केवल ये भर गोटे स्तर अच्छी आयनोस्फियर द्वारा व्यवहार करुचे ताकू जब आम ऊर्ध्व को जावा से ऊपर को गले एक्सोस्फियर अर्थात हूँ 400 ରୁ पूरा ऊर्ध्व अर्थात 16 किलोमीटर पूरा अति हल्का वायु हिलियम उजान अति हल्का गैस गुड़िक यही स्पीयर रही था जोटा कि आम देखिए हिलियम गैस उजान गैस आम साधारण बेलून व्यवहार करा हिलियम को जो कि अति ऊर्ध्व जाऊँ जोटा कि आम विभिन्न उत्सव आम बेलून हवा दे छाड़ू से गैस को एक्सोस्फियर रखा अर्थात से आम बेलून को छाड़ीदे सी अति शीघ्र से स्पीयर ऊपर को जाए कारण तार स्थान हूँ एक्सोस्फियर यहीपर यहाँ रही केवल मन रख ट्रोपोस्फियर केवल ही वृष्टिपात होता है यही स्पीयर ही बर्तमान आम जो बसवास कर स्पीयर थी बचे आम ऊपर को गले देखी आस्ते आस्ते वायुर चाप कमी जाए अर्थात वायु कमी कमी जाए जोटा कि लोक मैंने बचा असंभव होता है।
तो से स्क्वायर देखिले पृथ्वी भितर जदि गैस परिमाण देखा जब 100 भाग नहीं जावा पृथ्वी जी भी गैस अच्छी 100 भाग नहीं जावा भर केवल 78 भाग हूँ जबखार्जन। तो जबखार्जन जोटा कि 78 भाग आम अच्छी जबखार्जन को आम सीधा सड़क व्यवहार न कले जोटा कि आम परोक्ष भाव में व्यवहार करुचे। तुम देख उद्भिद गोटे दिगंधन प्रक्रिया अच्छी से ही प्रक्रिया उद्भिद निजर फल भर जबखार्जन को संचय कै और आम खाद्य खाइले जबखार्जन पाई। जदि आम व्यवहार करुवा गैस कौन अम्लजान अम्लजान अर्थ हूँ आम निश्वास जो नेउचे आम प्रश्वास नौचे निश्वास जो छाड़ुचे तो नेबा जिनस हूँ अम्लजान पृथ्वी पृष्ठ में 21 भाग 21% देखा जाए। से अन्य गैस आसो अंगारकाम्ल धूलिकणा आसो जलीय बाष्प विभिन्न प्रकार मिसी मात्र 1 भाग। जदि आम प्रत्यक्ष भाव अंगारकाम्ल के भाग अच्छी तो 0.4 भाग 0.04 भाग आम अंगारकाम्ल को व्यवहार करवा। यहीपरि भाव में आम 100 भाग प्रतिशत हूँ आम पृथ्वी में जब अम्लजान कम परिमाण हुए तो आमको बचापी अति सहज होता है। देखिए बर्तमान अधिक कलकारखाना व्यवहार हेतु अंगारकाम्ल मात्रा वृद्धि होती जहाँफल पृथ्वी गोटे अन्य प्रकार परिवेश या जो कि कहना पृथ्वी बर्तमान गरम होगा लगे जोटा कि भौगोलिक उष्णता वृद्धि हो। तो ये विषय में जानिले वायुमंडल कौन वायु अर्थ परिमाण कौन वायुमंडल कौन कौन रोचे तो वायुमंडल देखिए। बर्तमान देखा जैव तुम निकट गोटे चित्र अच्छी पहाड़ अच्छी किसी घर अच्छी पोखरी अच्छी नदी अच्छी विभिन्न प्रकार आकाश चित्र अच्छी। तो जैव मंडल अर्थ हूँ उभय प्राणी और उद्भिद को नहीं पाखपाखि परिसंस्था कौन गोटे मनुष्य तार चतुर्पार्श्व रही विभिन्न अंश विशेष नहीं परिसंस्था गठित अर्थात उद्भिद प्राणी मान परिसंस्था को नहीं जो संबल जो मंडल गठित होता है जैव मंडल। जैव अर्थ हूँ जो देह जीवन अच्छी जीवन किसी सत्ता अच्छे अर्थात उद्भिद प्राणी को आम जैवर आख्या दी जाए। तो यही मंडल भितर साधारणतः आम विभिन्न प्रकार देखिपर जदि पुष्करिणी नदी नाल समुद्र इत्यादि विभिन्न रही अच्छी से आम जब महादेश भितर जावा आम विभिन्न प्रकार देश राज्य सहर ग्राम जिला आम पंचायत जहाँ जहाँ आम देखुचे बर्तमान अच्छी अर्थात यही भितर गोटे सामूहिक भाव गोटे परिसंस्था लगे अर्थात उद्भिद प्राणी बिना बचा असंभव प्राणी उद्भिद बिना बचा असंभव। जदि आम पृथ्वी पृष्ठ समस्त गछ को काटिदेवा आमर अंत घटव। जदि आम पृथ्वी पाखापाखि मनुष्य लोप पाई तो उद्भिद मान बचवा किसी कष्ट हो कारण आम भर गोटे गोटे चक्र आकार परिवर्तन अर्थात आम जो गैस व्यवहार करुचे सी आमको उद्भिद देता है। जदि आम जो गैस को छाड़ू थाए अर्थात जो निश्वास आम छाड़ुं से गैस को आमर उद्भिद मैंने ग्रहण करते अर्थात आम उद्भिद और मनुष्य भर गोटे चक्रकार परिवेश होता है। तेणु जैव मंडल पृथ्वी भितर निहाती दरकार अर्थात यही जो आम पृथ्वी पढ़ले 4टी मंडल अश्म बारी वायु जैव यही 4टी मंडल ही आम पृथ्वी पृष्ठ देखा जाए। यही 4टी मंडल आम निहाती दरकार जोटा कि आमर विभिन्न प्रकार बचार मध्यम दृष्टि आमको निहाती आवश्यक। आम बुझे पूरा अश्वमंडल कौन महादेश विषय पूरा बुझीगले सेपरी बारीमंडल कौन बारी अर्थ कौन केते प्रकार महादेश कौन अच्छी जल प्रकार भी आम बुझीगले। वायुमंडल बुझे कौन कौन स्पीयर अच्छी ट्रपो स्ट्राटो मेसो थर्मो एक्सो जहाँ भी बुझे आ बाकी जबखार्जन अम्लजान इत्यादि के गैस रही परिमाण से विषय बुझे। बर्तमान देखिए जैव मंडल भितर आम किपरि बंचुचे आम मध्य किपरि परिक्रिया जोटा कि आम भितर परस्पर भितर किपरि संपर्क रही अच्छी तो ता विषय बुझे। तो अति छोट पाठ ठीक भाव पढ़व चित्र को भल लक्ष्य कर तुमको पीडीएफ डिटेल मुझे पठेदेवी तुम निकट को तो भल अध्ययन कर तार क्वेश्चन आंसर ठीक भाव लिख। तो आशा करुँच वीडियो ठीक भाव बुझीपार रोचे धन्यवाद।